ناول یہ محبتیں پری خان کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ نکاح کے بعد کی محبت اور کھٹی میٹھی لڑائیوں اور مزاحیہ سے بھرپور ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بابا میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے تمہارے پاس؟ ایک نہیں، بہت ساری وجہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ اچھا، وہ لڑکی تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں جناب کو کس ٹائپ کی لڑکیاں پسند ہے؟ بابا آپ میری شادی دنیا کی کسی بھی لڑکی سے کروا دیں، میں خاموشی سے کر لوں گا، لیکن آپ کے دوست کی بیٹی سے شادی میں ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے اس بچی سے؟ کیا کمی ہے اس میں جو تم اس کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ بولو۔ بابا کوئی کمی نہیں ہے، بس میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ نکاح تو تمہارا اسی سے ہی ہوگا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ویسے بھی ابھی بس نکاح ہی ہوگا، رخصتی اس کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہوگی۔ مجھے یقین ہے رخصتی تک تمہاری اس بچی کے بارے میں رائے بدل جائے گی۔ اس کے بارے میں میری رائے کبھی نہیں بدلے گی، نہ آج، نہ کل، اور نہ کچھ مہینوں بعد۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر کے اچھا نہیں کر رہے، اور اس بات کا احساس آپ کو بہت جلد ہو جائے گا۔ ریحان ارشاد کو انگلی دکھائے غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارشاد آپ بچوں کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے؟ دونوں بچے ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ کیوں اتنا زور دے رہے؟ سائمہ تم اچھے سے جانتی ہو میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں۔ میں دونوں بچوں کی شادی کے لیے میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھوں گا۔ آپ نے شانزے کو سگے باپ سے بھی زیادہ پیار دیا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھا ہے آپ نے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں جس بیٹی کو میں نے اتنا پیار دیا وہ بیٹی ہمیشہ میرے ساتھ رہے، ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ ارشاد میں آپ کے جذبات کو سمجھتی ہوں، لیکن آپ بچوں کے جذباتوں کو بھی سمجھے۔ شادی کے بعد اگر دونوں بچوں کی آپس میں نہ بنی تو کیا کریں گے آپ؟ تب بھی آپ زبردستی کریں گے؟ سائمہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتی، تم بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، تم نکاح کی تیاریاں کرو، نکاح اسی جمعرات کو ہوگا۔ ارشاد آپ ایک بار پھر سوچ لیں، یہ نہ ہو آپ کا فیصلہ بچوں کی زندگی تباہ کر دے۔ کسی کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، یہ بات تمہیں بھی بہت جلد سمجھ آ جائے گی۔ میرا فیصلہ کتنا صحیح تھا۔ میری پیاری بھابھی جان، آپ دوپہر کے اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہے؟ سلیم شانزے کو کچن میں کھڑا دیکھ اس کے پاس آتا ہوا بولا، میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں تو مہربانی کر کے مجھے بھابھی کہنا بند کر دو۔ یہ کیا بات ہوئی بھابھی جان؟ آپ میرے بھائی کی بیوی بننے جا رہی ہے تو اس حساب سے تو میری بھابھی ہی ہوئی، اور آپ تو جانتی ہے میں حساب کا کتنا پکا ہوں۔ سلیم شانزے کے بگڑے ہوئے موڈ کا مزید بگاڑنے کے لیے ہونٹوں پر بڑی مسکراہٹ سجائے بولا، اگر مجھے غصہ آ گیا تو تمہارے سارے حساب کتاب نکال دوں گی۔ میں جانتی ہوں تم کتنے حساب کے پکے ہو، حساب کے اتنے ہی اچھے ہوتے تو اب تک گریجویٹ کر چکے ہوتے۔ آئندہ مجھے کبھی بھابھی جیسے الفاظ سے پکارا تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ بھابھی لفظ سے شانزے کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ شانزے ارشاد کے سامنے مجبور تھی، اس انسان کی بات سے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی جس نے اسے سگے باپ سے بھی زیادہ پیار دیا تھا۔ اگر اس کے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن ہوتا تو کبھی بھی ریحان سے شادی نہ کرتی۔ میں تو تمہیں بھابھی ہی کہوں گا، چاہے تم میرا حشر بگاڑ دو یا مجھے جان سے مار دو۔ سلیم اگر تم نے ایک اور بار بھی یہ لفظ بولا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ شانزے آگ بگولا بنی پانی کا گلاس اٹھائے سلیم کے جانب بڑھی، یار تم تو سیریس ہی ہو گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا، ریلیکس رہو۔ سلیم شانزے کے ہاتھ میں گلاس دیکھے گھبراتے ہوئے بولا، اچھا ہے تمہیں بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ آج تمہارا سر شہید ہو جاتا۔ شانزے سلیم کو یوں ہارتا دیکھ مسکراتے ہوئے بولی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری شادی تو میرے بھائی سے ہو کر رہیں گی، میں بھی دیکھتا ہوں تم شادی کے بعد مجھے بھابھی کہنے سے کیسے روکتی ہو، میری پیاری بھابھی جان۔ سلیم شانزے کو آنکھ مارتے وہاں سے بھاگ گیا، تمہیں چھوڑوں گی نہیں سلیم کے بچے۔ شانزے غصے سے لال ہوئی سلیم کے پیچھے بھاگی، پہلے مجھے پکڑ کے تو دکھاؤ۔ سلیم ہال میں بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے شانزے کو چڑھاتے ہوئے بولا، سلیم میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ ورنہ میں سچی میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ شانزے ہانپتے ہوئے ہاتھ میں گلاس اٹھائے بھاگتے ہوئے سلیم سے بولی،
मैं नहीं डरने वाला तुम्हारी इन धमकियों से। सलीम लबों पे मुस्कुराहट सजाए उसके आगे आगे भागते हुए बोला, अच्छा तो तुम नहीं रुकने वाले। तो ठीक है, बाद में शिकायत मत करना कि मैंने वार्न नहीं किया था। हाँ, कांच की आवाज एकदम हॉल में गूंजी। शानजे आंखें फाड़े सामने देख रही थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या निशाना है, मगर अफसोस निशाना मिस हो गया। सलीम अपने आगे रेहान को खड़ा देख शानजे की बिगड़ती हालत का सोचते हुए अफसोस से बोला, तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है? अगर ये गिलास किसी को लग जाता तो जानती हो क्या होता? रेहान चंद कदम दूर खड़ी शानजे को देखकर उस पर भड़क उठा। किसी को लगा तो नहीं? शानजे रेहान के गुस्से की परवाह किए बगैर बोली। ऐसा कभी हो सकता था? शानजे रेहान के आगे चुप रह जाती। रेहान को जवाब देना तो ये अपना फर्ज समझती थी। आखिर तुम समझती क्या हो खुद को? रेहान चंद कदम का फासला मिठाए शानजे के पास गया, उसको बाजुओं से पकड़े के झिंझोड़ गया। जो तुम खुद को समझती हो उससे तो कम ही समझती हूँ खुद को। शानजे लबों को खींचते रेहान को आग लगा गई। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। रेहान शानजे के बाजू को जोर से दबाए उसके हम ब्राउन बड़ी आंखों में देखने लगा। अल्लाह ने जबान दी है तो चलाऊंगी। अब जबान को ताला लगा के डब्बे में बंद करके तो नहीं रख सकती। तुम्हारे पास भी जबान है, तुम भी जितनी मर्जी चलाओ, किसी ने रोका थोड़ी है। शानजे बाजू से उठते हुए दर्द को छुपाए रेहान की आंखों में आंखें डाले बोली। कई सेकंड दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते रहे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। नफरत के अलावा कोई एहसास इनकी आंखों में न देखने के बराबर था। वाह, क्या जवाब दिया है मेरी प्यारी भाभी ने। भाई तो लाजवाब ही हो गए, ग्रेट भाभी। सलीम दोनों की लड़ाई एंजॉय करते हुए तालियां बजाते बोला, भाभी नहीं है ये तुम्हारी, ना ही कभी होंगी। रेहान शानजे को परे झटकते गुस्से से सलीम को देखते हुए बोला, हाँ तो मुझे भी कोई भाभी बनने का शौक नहीं है। शानजे भी गुस्से से भरी बोली, तो फिर क्यों कर रही हो शादी? इनकार क्यों नहीं कर देती? तुम क्यों नहीं इनकार करते? मुझे तो लगता है तुम खुद मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि तुम मुझे अपना गुलाम बना सको और मुझसे बदले ले सको। वाह, क्या बात है, अब बस यही सुनना रह गया था। मुझे लगता है तुम थोड़ी पागल हो, लेकिन मुझे आज अंदाजा हो गया तुम थोड़ी नहीं, तुम पूरी पागल हो। रेहान एक तल्ख नजर शानजे पर डाले वहां से निकल गया। रेहान के जाते ही सलीम का कहकहा माहौल में गूंजा, अब तुम क्यों गला फाड़कर हंस रहे हो? शानजे सलीम को यूं हंसता देख बोली, मैं सोच रहा था बाबा ने क्या सोचकर तुम दोनों की शादी करने का सोचा। बिल्ली चूहे की तरह लड़ते हो तुम दोनों, कैसे रहोगे एक साथ? दफा हो जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे उस खड़ूस के मुंह लगना पड़ा। शानजे पैर पटकती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ी। ए मेरे खुदा, दोनों को एक साथ सुकून से रहने की तौफीक देना, वरना इन दोनों की लड़ाई से ये घर जरूर चिड़ियाघर बन जाएगा। बेगम, सब तैयारियां हो गई? शॉपिंग मुकम्मल हो गई? हाँ, सब तैयारियां मुकम्मल हो गई, अब बस खैर से कल का दिन निकल जाए। तुम फिक्र ना करो, बस सब खैरियत से हो जाएगा। इरशाद, आप एक बार फिर सोच ले, हम गलती तो नहीं कर रहे? साइमा उदास होते हुए बोली। दोनों बच्चों के उदास चेहरे उन्हें टेंशन में मुब्तला कर रहे थे। अब सोचने का वक्त नहीं है, अब तो अपने फैसले पर अमल करने का वक्त है। कल का दिन जितना हमारे लिए खास होगा उससे कहीं ज्यादा हमारे बच्चों के लिए खास है। तुम पुरसुकून होकर सो जाओ। अल्लाह बस हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। मैं तो बस अब इन दोनों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ। अल्लाह दोनों के दिलों में एक दूसरों के लिए महबे पना मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलो अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। इरशाद अपने ऊपर कंबल लिए लेट गए। साइमा भी अपने दोनों बच्चों के लिए भरपूर दुआएं मांगते सो गई। पूरी हवेली रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजी हुई थी। तमाम मेहमान आ चुके थे। घर के सभी अफराद तैयार होकर हॉल में मौजूद थे। रेहाल ब्लू टॉप्स में बहुत हैंडसम लग रहा था। चौड़ा सीना, 6 फीट से निकलता लंबा कद, काली दरमियानी आंखें, खड़ी नाक, काले ब्राउन बाल जो बड़ी महारत से सेट किए हुए थे। ब्लू रंग उसकी सफेद रंगत को और भी निखार रहा था। सब मर्द हॉल में मौजूद थे। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी।
मौलवी निकाह की रस्म शुरू कर चुका था। रेहान बेबसी बैठा और अपने ही ख्यालों में गुम था। यहाँ तक कि उसे मौलवी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मौलवी 2 मरतबा रेहान से पूछ चुका था, बेटा क्या आपको ये निकाह कबूल है? सबकी नजर रेहान पर थी, जो गुमसुम सा बैठा सबको परेशानी में मुब्तला कर रहा था। इरशाद का दिल बैठा जा रहा था। लाख सवाल उसके जहन में गर्दिश करने लगे। भाई मौलवी साहब आपसे कुछ पूछे? सलीम रेहान को गुमसुम बैठा देख रेहान को कंधे से हिलाते हुए होश में लाया। बेटा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, रेहान इरशाद की तरफ देख दुख भरी नजरों से देखते हुए बोला। सबके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। निकाह नामे पर साइन करते ही मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। रेहान को मुबारकबाद दिए सलीम और इरशाद मौलवी साहब को लिए अंदर की जानिब बढ़े, जहां शान से बाकी तमाम खवातीन थी। शान से दुल्हन बनी पहले से इंतजार में बैठी हुई थी। वाइट फुल फेरी फ्रॉक जिस पर गोल्डन स्टोन का काम किया हुआ था पहने बहुत प्यारी लग रही थी। ब्राउन बड़ी आंखें, उस पर मुड़ी हुई पलकें आज गजब ढा रही थी। छोटी नाक, पतले होठ जो पिंक कलर से सजे हुए थे, हॉल जो के बाल जो के ढीले ढाले जोड़े में बंधे हुए थे, उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहे थे। मौलवी साहब के आते ही साइमा ने उसके चेहरे को सफेद नेट के दुपट्टे से ढांप दिया, जिससे शानजे का चेहरा फुल छुप गया। निकाह की रस्म अदा होते ही मौलवी साहब शानजे से साइन लिए बाहर चले गए। इरशाद शानजे को मुबारकबाद दिए, अब उसे अपने सीने से लगा गए। आज दोनों बच्चों ने उनका मान रखा था। आज उनका वादा पूरा हो गया था जो उन्होंने अपने मरते हुए दोस्त से किया था। हमेशा खुश रहो। इरशाद शानजे के सर पे बोसा दिया, आंखों में आई नमी छुपाने के लिए फौरन बाहर चले गए। मुबारक हो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। साइमा कहते हुए शानजे के गले लग गई। शानजे को अपने माँ बाप की ना सही लेकिन इन लोगों से जितना प्यार मिला था शायद ही उसके अपने माँ बाप उसे इतना प्यार मिलता। शानजे आंखों में आए आप हुए आंसू साफ किए जोर से साइमा से लिपट गई। भाभी जान बहुत मुबारक हो, आखिरकार आप मेरी भाभी बन ही गई। सलीम शानजे के कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मैंने कितनी बार बोला है भाभी मत बोलो, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ जैसे पहले बुलाते थे। पहले की बात कुछ और थी, अब तो मैं आपकी को भाभी ही बुलाऊंगा। ठीक है, तुम्हें ठीक लगे ऐसे हमारी दोस्ती और बहन भाई का रिश्ता भी खत्म। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर। आज से तुम मुझे से ज्यादा बात नहीं कर सकते, ना ही मुझे तंग कर सकते हो। क्यों? ऐसा क्यों? सलीम परेशान हुआ। तुमने खुद ही मुझे अपनी भाभी बनाया है, सब रिश्ते छोड़कर तुमने भाभी का रिश्ता चुना है और भाभी के रिश्ते में मैं तुमसे बड़ी हुई। चलो अब जाओ, मुझे ड्रेस चेंज करना है। शानजे अपनी हंसी छुपाते बोली। वो जानती थी सलीम ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा कि सब रिश्ते खत्म करके वो सिर्फ भाभी का रिश्ता रखे। वो तो उसे अपनी छोटी बहनों की तरह चाहता था, इसलिए तो हर वक्त तंग करता था उसे। ठीक है, तुम जीत गई, नहीं कहूंगा मैं तुम्हें भाभी। तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहूंगी। भाभी के चक्कर में मैं अपनी बहन नहीं खो सकता, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें भाभी बुला सकता हूँ। मेरे भी छोटे छोटे अरमान है कि मैं भी किसी को भाभी बोलूं, तो इन अरमानों को खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, कभी कभी तुम बुला सकते हो। शानजे सलीम के मासूम से चेहरे को देख हंसते हुए बोली। तुम बहुत चालाक हो, अपनी बात मनवा ही लेती हो। आखिर बहन किसकी हूँ? शहजादे सलीम की। सलीम अपना कॉलर ऊपर किए बोला, जिससे दोनों का कहकहा कमरे में गूंजा। मामा मामा, रेहान गुस्से से चीखा। क्या मसला है? क्यों सारा घर सर पर उठाया हुआ है सुबह सुबह? मामा मेरी शर्ट का ये हाल किसने किया? आपको पता है ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। शानजे जो अभी आई थी रेहान की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। आज उसकी खैर नहीं थी। या अल्लाह, शर्ट तो मैंने छुपा दी थी, ये खड़ूस को कहाँ से मिल गई? शानजे दिल ही दिल में बोली। तुमने मेरी शर्ट का ये हाल किया है? रेहान शानजे को दरवाजे पर घबराया हुआ खड़ा देख उसके पास आया और शर्ट को उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। शर्ट बुरी तरह जली हुई थी। नहीं, मैंने नहीं किया ये, मुझे क्या पता तुम्हारी शर्ट कैसे जली। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। शानजे अपनी घबराहट छुपाते बोली। छुपाए हुए बोलती हुई साइमा की जानिब बढ़ी। अगर एक सेकंड उस खड़ूस के पास रुकती तो वो खड़ूस शायद उसकी जान ले लेता। एक शर्ट के लिए इतना शोर क्यों डाल रहे हो? शर्ट ही तो है। नहीं आ जाएंगी? साइमा गुस्से से भरी रेहान को देखते हुए बोली। ये मेरी फेवरेट शर्ट थी और जिसने भी इसका ये हाल किया इसका तो नक्शा बिगाड़ दूंगा। रेहान की नजरें
शानज़े पे थी जिसे अभी ये उसे अपने गुस्से पर जला देगा। शानज़े को क्यों ऐसे देख रहा है? वो कह तो रही है कि इसने नहीं किया ये सब। अगर किया भी होता तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? एक शर्ट ही है, नहीं आ जाएगी। अच्छा ऐसा है, अब मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं रही, ना ही मेरी चीजों की कोई कदर रही है। और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। जब से इस घर में आई है सब इसके ही दीवाने बने बैठे हैं। देख लूंगा इसे मैं। रेहान गुस्से से बोले, वॉशरूम में घुस गया। पागल हो गया ये लड़का। साहिमा भी कमरे से बाहर निकल गई। शुक्र है अल्लाह का, मेरी जान बच गई, वरना ये खड़ूस आदमी तो आज मेरी जान ले लेता। अल्लाह मियाँ, आज तो देख रहे हैं, आप तो देख रहे हैं। मैंने जानबूझकर इसकी शर्ट नहीं जलाई, वो गलती से सलीम की शर्ट समझ के मैंने इसकी जला दी। चल शानजे, यहाँ से भाग ले, इससे पहले वो खड़ूस सिंह पर तुम्हारे सर पर नाजिल न हो जाए। शानजे कमरे में नजर दौड़ाए, वहां से भाग गई। रेहान, आज से शानजे को यूनिवर्सिटी से तुम लेकर अभी जाया करोगे और लेकर आया भी करोगे। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे कि इरशाद की आवाज गूंजी। रेहान और शानजे ने एक सेकंड के लिए एक दूसरे को तरफ देखा। उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे किसी ने उनके सर पे बम फोड़ा है। बाबा, इसकी जरूरत नहीं, मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी तो मैं हमेशा उनके साथ जाती हूँ। हाँ, तुम उनके साथ जाती हो, लेकिन अब तुम रेहान के साथ जाया करोगी। अब तुम इसकी जिम्मेदारी हो, ड्राइवर अंकल की नहीं। डैड, पहले भी तो ड्राइवर लेकर जाता था, अब लेकर जाने में क्या मसला है? रेहान नाश्ता छोड़ते हुए बोला, मैंने बोला है तुम लेकर जाया करोगे, तो बस किस बात की है? ड्राइवर अब तो मेरे साथ जाया करेगा। अब मुझसे गाड़ी नहीं चलती और डॉक्टर ने भी मुझे ड्राइव करने से मना किया है। जल्दी चलो, मैं तुम्हारा हरगिज बाहर इंतजार नहीं करूंगा। रेहान गुस्से से टेबल से उठते हुए शानजे से बोला। रेहान अपनी जिंदगी से तंग आ गया था जब से शानजे उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। इसकी जिंदगी पूरी बदल गई थी। अब हर वक्त गुस्सा उसके सर पे सवार होता था। उसकी अपनी जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। हर काम, हर बात शानजे से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। मैंने बोला था मैं इंतजार नहीं करूंगा, एक बात तुम्हारी समझ नहीं आती? रेहान बाहर आती हुई शानजे को देख उस पर बरस पड़ा। मैं टाइम पर आई हूँ। बाबा का गुस्सा मुझ पर निकालने की जरूरत नहीं। मैंने बाबा से नहीं बोला मेरा ड्राइवर बदलने के लिए। शानजे रेहान के गुस्से को इग्नोर किए गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। ड्राइवर? मैं ड्राइवर? या अल्लाह, मुझे सब्र दे, कहीं मैं इस लड़की का कत्ल ही ना कर दूं। रेहान अपने गुस्सा कंट्रोल किए ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। आगे आओ, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम मैडम की तरह बड़े बड़े आराम से पीछे बैठी हो। रेहान मिरर से पीछे बैठी शानजे को देखते हुए बोला। शानजे सोच में पड़ गई, जाए या नहीं। इतना सोच क्या रही? अगर आगे नहीं बैठना तो गाड़ी से उतर जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। रेहान गाड़ी स्टार्ट करते हुए पीछे देखते हुए बोला। शानजे बाबा का सोचते हुए पीछे से अगली सीट पर आ गई। मामा, आप सब मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? शानजे सायमा के साथ पैकिंग में मदद करते हुए उदासी से बोली। तुम अकेली कहाँ हो? रेहान भी तो है। इसी बात की तो फिक्र है, शानजे इतने आराम से बोली कि पास खड़ी सायमा भी सुन नहीं पाई। हमारा जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती और तुम्हें भी तो साथ नहीं लेकर जा सकती। तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं। हम कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे। तुम अपना और रेहान का ख्याल रखना। सायमा शांजे को का गाल सहलाते हुए प्यार से बोली। शायद शांजे सायमा के सीने से लगे अपने आंसू को छुपाने लगी। आज पहली दफा ऐसा हो रहा था कि शांजे सायमा के बिना अकेली घर रुक रही थी, वरना सायमा जहां जाती थी शांजे हमेशा उसी के साथ होती थी। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, वरना तुम्हें तुम्हारे बाबा को तो पता है वक्त के कितने पाबंद है। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो उन्हें मौका मिल जाएगा मुझे बातें सुनाने का। रेहान, ड्राइवर को बोलो ये सब बैग भी गाड़ी में रख दे। सायमा अपने बैग भी रेहान को देते हुए बोली। अब हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से पेपर देना। सायमा शांजे की पेशानी को चूमे उसे सीने से लगा गई। मामा, मुझे भी भाभी से मिलने का मौका दे, हम भी वेटिंग लिस्ट में शामिल है। सलीम दोनों के इमोशनल होता देख शरारत से बोला, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। तुम्हारे बाबा हमारा एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। सायमा सलीम से बोली,
باہر گاڑی کی جانب بڑھی۔ اللہ حافظ پیاری بھابھی جان، آپ یہاں رہ کر پیپر دیں اور میں تو چلا انجوائے کرنے۔ کتنا مزہ آئے گا شادی پہ، مجھے تو ابھی سے سوچ کے مزہ آ رہا ہے۔ بہت ہی فضول قسم کے بھائی ہو تم، کیا ضرورت ہے شادی پہ جانے کی، یہیں پہ رہتے ہمارے ساتھ، شانزہ غصے سے بولی۔ بہت اچھے، خود تو شادی پہ نہیں جا رہی ہے اور میرے بھی مزے خراب کرنے پہ لگی ہوئی ہو۔ تم رہو اپنے خڑوس شوہر کے ساتھ، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، شیر سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی تم زبان کم چلاؤں گی اتنے ہی فائدے میں رہوں گی۔ سلیم ہنستے ہوئے بولا، تم مجھے زیادہ نصیحت مت دو، اپنا خیال مجھے رکھنا آتا ہے، فکر تو تمہارے بھائی کو کرنی چاہیے۔ میرا کام تھا تمہیں آگاہ کرنا، اب اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلو اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سلیم باہر کی طرف بڑا، سائمہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے روانہ ہو گیا۔ شانزہ اور ریحان دونوں کو الوداع کیے اندر چلے آئے۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ ریحان شانزے کو بیگ شولڈر کے ساتھ لگائے جاتے دیکھ اس کی طرف آیا۔ میں کہیں بھی جاؤں، تمہیں اس سے مطلب؟ شانزے اس کی جانب مڑی۔ بالکل، شاید تم بھول رہی ہو، کچھ دن پہلے ہی تم نے نکاح نامے پر دستخط کر کے خود کو میرے حوالے کیا ہے۔ اب تم میری ملکیت، اور تمہاری ہر بات ہر کام سے مجھے مطلب ہوگا، سمجھی؟ ریحان آنکھوں میں نفرت لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں میں تمہاری غلام ہو گئی؟ میں اب بھی جو چاہوں کر سکتی ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اچھا ایسی بات ہے تو مجھے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکل کر دکھاؤ۔ ریحان اسے چیلنج کرتے ہوئے پیچھے سے اسے راستہ دیے پیچھے ہوا۔ ریحان دیکھو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں بابا سے شکایت لگاؤں گی۔ ریحان کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ شانزے کے آگے بڑھتے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی اس وقت کسی کے ساتھ بحث کر کے وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی نہیں مار سکتی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا، ڈر گئی؟ بڑیوگل، میں ڈرتی نہیں، وہ تو میں اس لیے لڑائی نہیں کرنا چاہتی، کل میرا لاسٹ پیپر ہے، اس کی تیاری کے لیے میں اپنا ذہن پرسکون رکھنا چاہتی ہوں، بس اسی لیے۔ کل تمہارا لاسٹ پیپر ہے تو تم تیاری کرنے کی بجائے بیگ پکڑے کہاں جا رہی ہو؟ وہیں تو کرنے جا رہی ہوں، مجھے کچھ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں اپنی فرینڈ کے پاس جا رہی تھی، وہ میری مدد کر دیں گی۔ آج پہلی بار شانزے اسے کسی چیز کی وضاحت دے رہی تھی، وہ بھی بس اس لیے کہ آج اسے اس کے غصے سے بچانے والا کوئی موجود نہیں تھا گھر میں، صرف یہ دونوں موجود تھے، ملازمہ بھی اپنی کوارٹر میں تھی۔ اب میں جاؤں؟ شانزے بیگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہیں، اگر میں نہیں گئی تو کل کے پیپر میں فیل ہو جاؤں گی۔ نہیں ہوگی فیل تم۔ فیل بتاؤ کون سے ٹاپک ہے، میں سمجھا دیتا ہوں، لیکن تم گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ تم کیسے سمجھاؤں گے؟ وہ بہت مشکل ٹاپک ہے، تمہیں بھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ شانزے جتنی اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی اتنا ہی وہ اس کے گلے پڑ رہا تھا۔ تم میری قابلیت پہ شک کر رہی ہو؟ ریحان اس کی طرف دیکھے اپنی آئیبرو اچکائے بولا۔ چلو اسٹڈی روم میں اور بتاؤ کون سا ٹاپک ہے۔ ریحان اسٹڈی روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولے۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنسا دیا، اس دن سے پڑھنے کی بجائے میں فیل ہی ہو جاتی تو اچھا تھا، اس سے پنگا بھی نہیں لے سکتی۔ آنے دو ماما بابا کو، ایک ایک شکایت لگاؤں گی اس دن کی، لیکن تب تک اللہ میاں جی مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ شانزہ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ سے چلتے ہوئے بڑبڑانے لگی تھی۔ شانزہ یار، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ 5ویں مرتبہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ریحان اسے بار بار سمجھائے تنگ آ گیا تھا، لیکن ایک لفظ بھی اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اب ریحان کو غصہ آنے لگا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہا تو نہیں آ رہا، ویسے بھی میتھ میرا ناپسندیدہ سبجیکٹ ہے، اس لیے میں نے بولا تھا مجھے اپنی فرینڈ کے پاس جانے دو، وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے، اس کے سمجھانے سے تو میں 1 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ ایسا کیا کرتی ہے میں تمہیں اتنے جلدی سمجھ آ جاتی ہے؟ مجھے پیار سے سمجھاتی، تمہاری طرح غصے سے نہیں۔ رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا، میں کل صبح اس سے جا کر سمجھ لوں گی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، تمہیں بھی چاہیے تو بتا دو، تمہارے لیے بھی لے آتی ہوں۔ شانزے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالنے لگی۔ ویسے تو تم ایک چلاکو ماسی بنتی پھرتی، لیکن میتھ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ مجھے بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے، لیکن جس طرح آپ سمجھاتے ہیں اس طرح مجھے سمجھ نہیں آتا، اور ویسے بھی میں سمجھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شانزے جاتے ہوئے ریحان کو طنز کیے بنا نہیں رہ سکی، جو خود ہی سمجھنا نہیں چاہتا اسے کیا میری سمجھ آئے گی۔ ریحان نے اپنی انسلٹ برداشت نہیں ہوئی۔ یا اللہ، مجھے صبر دینا، نہ جانے کس سوئے
किस नमूने को आपने मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया है। मैंने कौन-कौन से ख्वाब देखे थे अपने लाइफ़ पार्टनर के हवाले से, लेकिन ये तो बिल्कुल इसके बरअक्स है। रेहान सर आह भर के रह गया। रेहान प्लीज़ मुझे शादी पर ले जाओ। शांजा आखिरी पेपर दिए सीधा यूनिवर्सिटी से रेहान के ऑफिस जा पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? मैंने मना किया था तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, तो तुम यहाँ क्यों आई? रेहान उसे अपने ऑफिस में देखकर गुस्से से उस पर चीखा। इतना चीख क्यों रहे हो? अकेले नहीं आई, अपनी फ्रेंड के साथ आई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी इसलिए आई हूँ, वरना मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। और ये फिजुल बात तुम्हारी जरूरी बात थी? रेहान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मामा बाबा की वजह से वो उसे इतने दिन जिसे नरमी से बात कर रहा था, वरना उसका गुस्सा खुद ब खुद हाई हो जाता था, लेकिन आज उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी और वो उस पर फट पड़ा। ये फिजूल की बात नहीं है, मुझे शादी पर जाना है। वो अभी भी शांति पे गुस्से से भरी बोली। उसके सोच के मुताबिक जब से निकाह हुआ था रेहान उस पर कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाने लगा था। ये बात शांजे को खटक रही थी, इसलिए आज वो बजित थी। चलो घर चलकर बात करते हैं, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। खान उसे बाजू से पकड़े हुए बाहर घसीटते हुए ले गया। छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी घर। शांजे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, चुपचाप यहाँ बैठो वरना। रेहान उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर फेंकते खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी लॉक कर गया। बहुत बदतमीज अकड़ू खड़ूस हो इंसान हो तुम। शांजे गुस्से से चिल्लाई, खामोश हो जा शांजे वरना कुछ बुरा हो जाएगा। रेहान दांत चबाते बोला। शांजे उस पर लानत भेजते खामोश आंसू गिराने लगी। मामा बाबा को घर आने दो, सब बताऊंगी उन्हें। तुम्हें डांट ना पड़वाई तो मेरा नाम भी शांजे नहीं। शांजे घर के अंदर दाखिल होती हुई बुड़बुड़ाई, तुम पागल तो नहीं? ये जानबूझकर मेरे सामने पागल बनती हो। शादी कल खत्म हो चुकी है, तुम वहां जाकर क्या करूंगी? अभी खत्म नहीं हुई, रात को वलीमा है, मुझे सलीम ने बताया। तुम वलीमा पर जाके क्या करूंगी? चुपचाप घर रहो, और वैसे भी कल सब वापस आ जाएंगे। रेहान उसे मुसलसल रोता हुआ देखा तो नरम होगा, तो मैं भी उनके साथ वापस आ जाती। तुम कभी नहीं मेरी बात मानते, मुझे हर वक्त डांटते हो, गुस्सा करते हो। आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? शान अपने आंसू अपने हाथ की पुष्ट से साफ किए उसकी जानिब देखने लगी। तुमने कुछ नहीं किया, मैंने ही सब कुछ किया है। मुझे अभी जाना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वापस आकर बात करता हूँ। और कहीं जाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान उसकी आंखों में देखे उसे वार्निंग दिया वापस जाने के लिए बाहर की जानिब बढ़े। चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। घटिया इंसान, खड़ूस, खुदगर्ज, जल्लाद। शान से ऊंची चिल्लाते हुए घर की तमाम चीजें तोड़ने फोड़ने लगी। उसका कितना दिल था शादी में जाने का, इसलिए बिना रेहान के गुस्से की परवाह किए वो उसके ऑफिस में गई, बस इस उम्मीद से के साथ कि शायद रेहान उसकी बात मान जाए। रेहान रात के 10 बजे अपना सारा काम खत्म किए जब घर पहुंचा तो पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ था। पूरा घर साफ सुथरा था, शायद मुलाजिमा ने घर की सारी सफाई कर दी थी। छोटे साहब आपके लिए खाना लगाओ? नूरिन किचन से बाहर निकले अदब से उसके पास आई, बोली, शांति ने खाना खाया? नहीं, वो तो दोपहर से अपने कमरे में बंद है। मैंने कितनी बार उन्हें बुलाया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद खा लूंगा। रेहान उसे कहे शांजे के कमरे की जानिब बढ़ा। एक दो बार कमरा नॉक करने से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रेहान जल्दी से कमरे की दूसरी चाबी लेकर आया और दरवाजा अनलॉक किया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रेहान को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाले, टॉर्च ऑन किया। कमरे में रोशनी होते ही उसे बेड पर शांजे औंधे मुंह गिरी पड़ी नजर आई। रेहान ने स्विच ढूंढकर लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, तकिए, कुशन, ड्रेसिंग टेबल से तमाम चीजें नीचे पड़ी हुई थी। कमरे की हालत देख रेहान उसके गुस्से का अच्छे से अंदाजा लगा सकता था। अपने आप को संभालते हुए रेहान उसके पास पहुंचा। दोपहर वाले कपड़ों में मौजूद ऐसे ही बेड पर पड़ी हुई थी। रेहान आगे बढ़े हुए उसके पास बैठे उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को आहिस्ता से पीछे किए, उसके पास से तस्वीर उठाई, एक नजर उसे देखते हुए साइड टेबल पर रख दिया। शायद वह जब भी उदास होती है अपने मामा पापा की तस्वीर को सीने से लगाए घंटों रोती थी। और ऐसा कभी कभी ही होता था क्योंकि रेहान के अलावा उसके घर के तमाम अफराद उससे बेहद मोहब्बत करते थे, उसे कभी उदास होने ही नहीं देते थे। शायद आज भी रेहान यहाँ ना आता, लेकिन साइमा के यहाँ ना होने की वजह से उसे उसका ख्याल रखना पड़ रहा था। शानजे उठ जाओ, खाना खा लो।
रेहान उसे कंधे से हिलाते हुए बोला, शानज़े, शानज़े उठ जाओ। रेहान उसे कंधे से झिंझोड़ता हुआ तेज आवाज में बोला, मामा प्लीज सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। शानज़े उसके हाथ को झटके दोबारा सो गई। हद है यार, कोई इंसान इतनी पक्की नींद कैसे सो सकता है। शानज़े उठ जाओ। रेहान उसे कंधे से पकड़े बैठाते हुए चिल्लाया, मामा सोने देना शानज़े। रेहान को सायमा समझे, उसकी गर्दन में बाजू डाले उसके करीब हुए, उसके कंधे पे सर टिका गई। रेहान को एकदम से शौक लगा, इसे शानज़े से इसकी उम्मीद नहीं थी। शानज़े के इतने करीब होने से उसका दिल तेजी से धड़का, उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। अपने बेटे की तरह आप भी मुझे तंग करने लगी है। आपका बेटा बहुत बदतमीज है, मुझे बहुत रुलाता है। शानज़े उसके गर्दन में अपना चेहरा मजीद छुपा उसके करीब हुई। रेहान तो अपनी जगह जम सा गया था। आज से पहले उसने कभी शानज़े को छुआ तक ना था, ना ही निकाह के बाद, लेकिन आज शानज़े के इस कदर करीब आना उस पर भारी पड़ रहा था। उसकी दिल की कैफियत बदल रही थी। वो भी एक बार उसके करीब आने से इसका दिल पहले कभी नहीं ऐसा धड़का था। उसके दिल की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा चल रही थी। इससे पहले रेहान पागल हो जाता, उसने उसे खुद से दूर फेंका और फौरन वहां से खड़ा हो गया। गिरने से शानज़ेब की नींद एकदम से खुली और अपने सामने रेहान को देख जल्दी से उठकर बैठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शानज़ेब से अपने कमरे में देख बेड से नीचे उतरी। वो मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आया था। रेहान अपनी नजर इधर उधर घुमाए, न जाने क्यों उसकी आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे खाना नहीं खाना, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। शान से मुंह फुलाए बोली, जिसे देख रेहान को गुस्सा नहीं आया, और आज ऐसा पहली बार हुआ था। रेहान कितने ही पल खड़े उसे खड़े देखता रहा। उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था। तुम गए नहीं अभी तक, बोला ना ना मैं नहीं खाना खाऊंगी, चले जाओ यहाँ से। रेहान एक नजर उसे देके जल्दी से वहां से निकल गया। उसे खुद भी नहीं पता लग रहा था उसके साथ हो क्या रहा था। खड़ोस हो। शानजे ने उसे जाता हुआ देखे दरवाजा अच्छे से बंद किया, लाइट ऑफ किए, बिस्तर पर वापस गिर गई। या मेरे खुदा, मुझे ये क्या हो गया था। रेहान अपने दिल के मुकाम पर हाथ की रखे धड़कन को महसूस करने लगा, जो अब बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। ये अब तो बिल्कुल ठीक है, पर फिर उस वक्त और मुझे उसकी बातों पे गुस्सा क्यों नहीं आया। रेहान ने अपनी पेशानी पे हाथ मारा तो उसकी पेशानी इतनी सर्दी में भी पसीने से भीगी हुई थी। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? कहीं इस लड़की ने मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। रेहान परेशान हुआ, पानी का पूरा जग मुंह से लगा गया और एक ही सांस में पी गया। अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? शान से दोनों से बारी बारी गले लगी। हम तो बिल्कुल ठीक है। हमारी बेटी कैसी है? पेपर कैसे हुए हमारी बच्ची के? मैं भी ठीक हूँ और पेपर भी बहुत अच्छे हुए। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। शानजे सायमा के गले लगी रो पड़ी। मेरी बच्ची को क्या हो गया? देखो, रोने वाली क्या बात है, अब तो हम तुम्हारे पास है। सायमा उसके आंसू साफ किए अपने सीने में ही भेज गई। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना मामा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। शानजे उसके गालों को जोर से चूमे दोबारा उसके सीने से लगी। रेहान उनके सामने सोफे पर बैठे ये सब देख रहा था, और आज पहली बार उसे शानजे के आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे, और ना ही उसका अपनी माँ से प्यार करना। अगर रात को वो कुछ ना हुआ होता तो यकीनन रेहान को माँ बेटी का ये प्यार एक आंख ना भाता, और अब तक गुस्से से यहाँ से उठकर चला जाता। लेकिन रात को उसके करीब जाने से उसकी कैफियत बदल गई थी। उसके जज्बात, और शानजे के बारे में ख्याल सब बदल रहे थे, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे अभी खुद भी नहीं था। मामा, सलीम कहीं नजर नहीं आ रहा? कहीं आप लोग उसे किसी नहर में तो नहीं फेंका है? शानजी अपने आंसू साफ किए सायमा से अलग हुई और बोली, और उसकी बात पर इशारा सायमा मुस्कुरा दी। कुछ भी हो, शादी ज्यादा देर उदास नहीं रह सकती थी, और इस बात को सब लोग अच्छे से जानते थे सिवाय रेहान के। रेहान ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। वो तो बस उसे अपना दुश्मन ही समझता था। उसने उसके घर में उसकी जगह ले, उसके मुताबिक उसके माँ बाप पर सिर्फ उसका ही हक था, और उनके प्यार पे भी वो, जिसे वो किसी के साथ बांट नहीं सकता था। नहीं, वो कल अपनी खाला के साथ आएगा। परवीन खाला आ रही है तो फिर उर्वा भी आएंगी। याहू, शानजे ने खुशी होती एक बार फिर सायमा के गालों को जोर से चूम लिया। मामा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था उड़कर आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन आपके इस खड़ूस बेटे ने मेरी एक बात नहीं सुनी और उल्टा मुझे ही डांट दिया। और आपको पता है, इस वजह से मैंने कल से खाना भी नहीं खाया था। लेकिन अब आपके हाथ की बिरयानी खा के मुझे बहुत मजा आ रहा है। शानजे बिरयानी खाते हुए नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। क्या?
रेहान ने तुम्हें डाँटा था? जी, उसने मुझे बहुत डाँटा था। मैंने उससे बोला भी था जब आप आएँगी तो मैं उसकी शिकायत लगाऊँगी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। आने दो उसे आज, मैं इसकी खूब क्लास लेती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी बच्ची को डाँटने की? हाँ, अच्छे से क्लास लेना और खूब डाँटना उसे। शानज़िया अपने मकसद में कामयाब होते हुए बहुत खुश हुई और यही तो चाहती थी। अब उसे बस रेहान के आने का इंतज़ार था और उसका उतरा हुआ मुँह देखने का। इसी लम्हे उसके बारे में सोचकर ही उसे इतनी खुशी हो रही थी। रेहान जो अभी ऑफिस से आया था, अंदर दाखिल होते ही साथ ही शानज़िया से टकराया। दोनों का सर एक दूसरे से इतनी जोर से टकराया कि शानज़िया अपना सर दोनों हाथ में थाम गई। क्या तुम कभी देख के नहीं चल सकती? जब देखो टकराती ही रहती हो। रेहान अपना सर हाथ से रगड़ते हुए उसके जानिब देख के तकरीबन चिल्लाया, तुम देखकर अंदर दाखिल हो नहीं हुए? मैं तो देखकर ही चल रही थी और ज्यादा मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा सर फोड़ दिया, चलो अब पीछे हटो, मुझे जाना है। शांजा अपने सर रगड़ती हुई बोली। रेहान आज उसके रंग ढंग देख के हैरान हुआ। कहाँ जा रही हो? रेहान उसके सामने से हटे हुए बगैर बोला, कहीं भी जाओ, तुमसे मतलब? उस दिन मैंने मतलब समझाया था, उम्मीद है दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं याद क्या बोला था तुमने, और ना ही मुझे याद रखना है। मैंने मामा से इजाजत ले ली कि अब पीछे हटो। तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो अंदर जाओ वापस। और इतना तैयार होकर कौन जाता है अंदर? जाओ और अपना चेहरा साफ करो, आज के बाद तुम कहीं लिपस्टिक लगाकर नहीं जाओगी। रेहान उसके सुर्ख लिपस्टिक रंगे हुए होठों देखकर बोला, मामा। शांजे उसे देखते हुए जोर से चिल्लाई, पीछे हट जाओ, अगर मामा आ गई तो बहुत बुरा होगा। मामा आकर क्या कर लेंगी? जब मैंने बोल दिया है तुम कहीं नहीं जाओगी तो कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? शांजे क्यों चिल्ला रही हो? सायमा उसकी चीख सुने भागते हुए आई। मामा, रेहान मुझे मेरी फ्रेंड के घर नहीं जाने दे रहा। मैंने बोला भी कि मैंने आपसे इजाजत ली, फिर भी नहीं जाने दे रहा। रेहान, क्या मसला है? क्यों नहीं जाने दे रहे हो बच्ची को? मामा, ये बाहर नहीं जाएगी, अपनी फ्रेंड के पास भी नहीं। लेकिन क्यों? सायमा अपने बेटे की बात पे हैरान हुई। क्योंकि मैंने कहा, मैं इसका शौहर हूँ। मेरी बात मानना इसका फर्ज है और मैं नहीं चाहता ये कहीं बाहर जाए। क्या बेमतलब की बातें कर रहे हो? पीछे हटो और जाने दो इसे, मैं देख रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा अजीब हरकत करने लगे हो। मामा, मैंने जो कह दिया वही होगा, ये बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, अब अपनी माँ के आगे जबान चलाएगा? शांजे के साथ तेरा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, इसलिए जब तक रुखसती नहीं हो जाती इसके बारे में फैसला करने का तुझे कोई हक नहीं। चल अब पीछे हट जा। खामखा बच्ची का मूड खराब कर दिया। शांजे, तुम जाओ, मैं देख लूंगी इसे। थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू। शांजे सायमा के गालों को चूमे कूदती हुई रेहान को जुबान दिखाए बाहर भाग गई। रेहान आंखों में गुस्सा लिए एक नजर जाती हुई शांजे पर और एक नजर अपनी माँ पर डाले अपने कमरे में चला गया। ये लो तुम्हारी चाय। सायमा चाय टेबल पर रखे रेहान के साथ सोफे पर बैठ गई। बेटा तो क्यों शांजे को तंग करता है? क्यों हर वक्त उस पर गुस्सा करता है? क्या बिगाड़ा है तेरा उस मासूम लड़की ने? आज तूने तो हद ही कर दी, इसका घर से जाना बंद कर रहा था। अगर तुम्हारे बाबा को ये सब बातें पता चली तो अच्छा नहीं होगा। मामा, आप मुझे समझाने से अच्छा अपनी इस बेटी को समझाए। आपको सिर्फ मेरी गलतियां नजर आती है, उसकी कोई गलती नजर नहीं आती। उसने क्या किया? इतनी मासूम तो है वो, भला तुम्हें क्या कह सकती है? वाह, कोई मासूम नहीं है वो। गज भर जितनी लंबी उसकी जबान है, मेरे सामने कभी बंद नहीं होती। वो अभी बच्ची है, ना समझे, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? देखो, तुम दोनों ने आगे सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ोगे तो आने वाली जिंदगी के साथ कैसे गुजारोगे? मामा, ये बात आप उसे समझाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं दोनों को समझाती हूँ, लेकिन लगता है तुम दोनों ये बात समझना ही नहीं चाहते। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। सायमा उसके सर पर हाथ फेरते हुए वहां से चली गई। रेहान सोफे से टेक लगाए अपनी आंखें मूंद गया। चाह चाह कर भी वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग ये सच मानने को तैयार नहीं था कि उसे शांजा से मोहब्बत हो गई, वो भी शिद्दत वाली। लेकिन इस बात पर उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। एक ही दिन में वो कैसे उसे प्यार कर सकता है? अभी कुछ दिन पहले उसके दिल और दिमाग में उसके लिए सिर्फ नफरत थी, और इस अचानक में वो नफरत प्यार में कैसे बदल गई? रेहान का दिमाग फटने को था। रेहान टेबल पर झुके चाय का कप मुंह से लगाए दिमाग को थोड़ा सुकून पहुंचाना चाहता था। उसे तो अब किसी और का ही नशा होने लगा था।
उस रात के बाद जब भी रेहान शाहज़े के करीब जाता था, उसकी धड़कन की स्पीड एकदम से बढ़ जाती थी। उसे उसकी काली बड़ी आंखों से प्यार हो गया था, उसके रेड होठों से, उसके गुलाबी गालों से, उसके रेशमी काले लंबे बालों से, उसकी खुशबू से, उसकी हर एक चीज से उसे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई थी। लेकिन दिमाग था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उर्वा मेरी जान, मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरे जिगर का टुकड़ा कैसी हो? शांजा अंदर दाखिल होते साथ ही उसे लिपटते उसके दोनों गालों को चूम। अरे यार, ये लड़की बिल्कुल पागल है, अगर हर एक को चूमती रहती है। रेहान अपनी मुट्ठी जोर से बंद किए शांजे को उर्वा से लिपटे देख अपना गुस्सा कंट्रोल किए आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, जिसे बस वही सुन सकता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? उर्वा उससे अलहदा हुए बोली, कोई हम गरीबों को भी पूछेगा या हम वापस चले जाए? सलीम शांजे के साथ सोफे पर बैठे हुए मासूम सी शक्ल बना गया। क्यों नहीं मेरे सोने मोने भाई, कैसे हो तुम? मुझे तो लगा था मामा बाबा तुम्हें नहर में फेंक आए हैं, लेकिन अफसोस मेरा है, बेड लक, तुम इतने जल्दी हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। शांजे उर्वा के कंधे पे हाथ रख के जोर से कह कहा लगा गई। शांजे, मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानने के बाद कि तुमने मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं किया। सलीम नाराज हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर गया। मेरा सोना भाई नाराज हो गया है? शांजे उसे गालों पे खींचते हुए प्यार से बोली, सच बताओ, मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया। सच में तुमने मुझे मिस किया? मैंने भी अपनी बहन को बहुत मिस किया। सलीम खुश होते उसे गले से लगा गया। अरे वाह, यहाँ तो बहुत प्यार बांटा जा रहा है, मुझे भी थोड़ा प्यार मिलेगा? क्यों नहीं सद्दाम भाई, आपको बहुत ढेर सारा प्यार मिलेगा। शान अपने दोनों बाजू हवा में फैलाए बोली, फिर ठीक है, मुझे तो लगा था मुझे यहाँ कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है हम दोनों की खूब जमेंगी। सद्दाम शानजे की तरफ मुस्कुराती नजरों से देखते हुए रेहान के साथ जा बैठा। इन दोनों की दोस्ताना बातें सुनकर किसी को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन रेहान का गुस्सा जरूर सातवें आसमान तक पहुंच चुका था। रेहान एक घुसेली नजर शांजे पर डाले खड़ा हो गया। अगर मजीद यहाँ रहता तो शायद यहीं फट पड़ता। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? परवीन रेहान को खड़ा देख बोली। खाला, मुझे कुछ काम है, वो करके आता हूँ। रेहान मसनवी मुस्कुराहट सजाए बोला। सब निगाह शांजे पर डाले वहां से निकल गया। खड़ूस कहीं का। शांजे रेहान की पीठ को देखते हुए बड़बड़ाई, चलो रुआ, मेरे कमरे में चलकर बातें करते, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। शांजे उर्वा का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले आई। रेहान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। अपना सीना जलाकर भी उसे सुकून हासिल नहीं हो रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी जाकर उस सद्दाम का मुंह तोड़ दे, जिस मुंह से वो उसकी बीवी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसका दिल शानजे को भी अच्छी खासा सबक सिखाने का कर रहा था। वो उसके सामने वो किसी गैर मर्द से कैसे प्यार मोहब्बत वाली बातें कर सकती थी? शानजे हमेशा से ही ऐसी थी, जल्द ही सबको अपनी मीठी मीठी बातों से अपना बना लेती थी। वो अलग बात है, रेहान को उसकी यही मीठी बातें जहर लगती थी। सद्दाम, उर्वा, सलीम से उसकी बचपन से बहुत गहरी दोस्ती थी। अरवा तो उसके लिए बहनों से भी बढ़ के थी, और सलीम और सद्दाम तो अपने भाई से भाइयों जैसे प्यारे थे। उनकी खातिर वो कुछ भी कर सकती थी, और वो यकीनन वो भी उसकी खातिर कुछ भी कर सकते थे। साहब, आपको साइमा मैडम खाने के लिए बुला रही है। नौरेन दरवाजा नॉक की अंदर दाखिल होते हुए बोली। मुझे भूख नहीं है। रेहान की आवाज इतनी सर्द थी कि नौरीन मजीद कुछ बोले वहां से चली गई। रेहान को खुद भी नहीं अंदाजा था कि वो कितनी सिगरेट पी चुका था। नीचे फर्श पर सिगरेट का ढेर लगा हुआ था। घर वाले उसकी इस आदत से अनजान थे। रेहान रोज नहीं पीता था, बस जब टेंशन ज्यादा हो जाता तब खुद को पुरसुकून करने के लिए उसे इनकी जरूरत पड़ती थी। यार, मैं तुम्हारे निकाह पे तो ना आ सकी, लेकिन देखना तुम तुम्हारी शादी पर कैसे धूम मचाती हूँ। सब देखते ही रह जाएंगे। धूम तो तुम तब मचाओगी जब वो खड़ूस धूमधाम मचाने देगा। कोई सड़ियल बंदा मेरे पल्ले पल्ले पड़ा है। मेरे तो नसीब ही फूट गए। शांजे बूढ़ी औरतों की तरह दोनों हाथ अपने सर पर रखे बोली, तो अरवा की हंसी हंसी छूट गई। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? यहाँ मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए और तुम्हें हंसी आ रही है? जैसे तुम रिएक्ट कर रही हो, जो भी देखेगा हंसेगा।
वैसे एक बात कहूँ, मेरे रेहान भाई इतने भी बुरे नहीं। अच्छा जी, मेरे रेहान भाई। और वाह मैडम, तुम तो बड़ी ही बेवफा निकली। शान से मुंह फुलाए उसे घूरने लगी। सच कह रही हूँ रेहान भाई बहुत अच्छे इंसान है। तुम अपनी सारी नाराजगी एक साइड पर रखकर उनके अंदर मौजूद अच्छाई को देखो। देखना तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा। फिर तुम उनकी तारीफें करते ही नहीं थकोगी। मैं और उस खड़ूस की तारीफें? ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा मेरी जिंदगी में एक विलन रहेगा, जिसने मेरा सुकून करार सब कुछ छीन लिया। देखना एक दिन यही विलन तुम्हारा दिल भी चुराएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उर्वा उसके लाल पीले होते चेहरे को देखे मुस्कुराई। उर्वा, ऐसे बातें बंद करना बंद करो, वरना मैं सलीम को सब बताऊंगी। शानजे बेड से उठती हुई दोनों हाथ कमर पर जमाए उसे देखने लगी। शानजे, तुमने मुझसे वादा किया था तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। उर्वा घबराते हुए एकदम से उठी। अगर तुम चाहती हो ये बात मैं किसी को ना बताऊं तो तुम उस खड़ूस की हिमायत मेरे सामने नहीं करूंगी, समझी? और जो मैं कह रही हूँ मेरे पीछे पीछे रिपीट करो और कसम खाओ। कैसी कसम? उर्वा ने नासमझी से बोली। तुम उस खड़ूस की कभी मेरे सामने हिमायत नहीं करोगी। बोलो जैसे मैं कह रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही बोलो। शान से अपना दाया हाथ उर्वा के सामने फैलाए उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं कभी भी तुम्हारे सामने इसकी हिमायत नहीं करूंगी। उर्वा उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखे बोली। वो इंसान एक ड्रैकुला है, पोषर वाला बंदर, बिना पोषर वाला बंदर, और मेरी जिंदगी में हमेशा एक विलन रहेगा। बोलो। शान से अपनी हंसी दबाए उर्वा को देखने लगी, जिसकी हालत खराब हो रही थी। शानजे, मैं रेहान भाई को ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? तुम बोल रही हो कि मैं जाऊं? शानजे अपना हाथ खींचते हुए बोली। नहीं, मैं बोल रही हूँ, जल्दी बोलो। वो इंसान एक ड्रैकुला है, बिना पोषण वाला बंदर है और तुम्हारी जिंदगी में एक विलन है। मेरे दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता और वो कभी तुम्हारे दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। बहुत खूब, अब अपना दिमाग से बाकी फिजूल बातें निकाल दो। शांता, तुम ये ठीक नहीं कर रही। उर्वा उदास हुई बोली। ना मेरी जान, उदास नहीं होते। शानदार से बेवफाई का नतीजा यही होता है। अब कभी मेरे सामने उस खड़ूस की हिमायत की तो इससे भी बुरा करूंगी। चलो अब जाकर खाना खाते हैं। शानदार उसके गालों को चूमे से अपने गले से लगाए बाहर ले आई। आज संडे होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आम रूटीन के अलावा कुछ ज्यादा ही रौनक लगी हुई थी। बच्चे एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। सायमा और परवीन एक दूसरे से बातें कर रही थी, साथ में नाश्ता कर रही थी। इरशाद सरबराही कुर्सी पर बैठा इन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। लड़कियों, जरा कम खाओ, इतना खाकर तुम लोग हमसे जीत नहीं सकती। सलीम दोनों को अपनी अपनी प्लेट पर झुका देख शरारत से बोला। जीत की बात कौन कर रहा है, जो खुद पिछली बार हमसे हार गया था? शानजे सलीम की तरफ देखकर हंसने लगी। पिछली बार की छोड़ो, अब की सोचो। शायद तुम रेहान भाई को जानती नहीं हो, क्रिकेट के चैंपियन रह चुके। और तुम्हारी इत्तला के मुताबिक इस बार रेहान भाई भी खेल रहे हैं, खेलने वाले हैं, वो भी मेरी टीम की तरफ से। सलीम रेहान के कंधों पर हाथ रख के शानजे की जानिब देखने लगा। रेहान की नजरें भी शानजे पर थी। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है तो हमारे पास भी सद्दाम भाई है। और याद है पिछली बार कैसे सद्दाम भाई अकेले तुम सब पे भारी पड़ गए थे? शानजे सद्दाम की तरफ एक नजर डाले सलीम के सामने उतरा के बोली। जहां सद्दाम के लब मुस्कुराए थे वहीं शानजे का सद्दाम के बारे में तारीफ करना रेहान को बुरा लगा था। पहले भी कई दफा सद्दाम इनके घर आ चुका था। रेहान भी अच्छे से जानता था कि सद्दाम और शानजे को बिल्कुल उर्वा की तरह ही मानता है, लेकिन फिर भी इस बार न जाने क्यों रेहान को सद्दाम से जलन हो रही थी। मैं कोई मैच नहीं खेलने वाला, मुझे आज बहुत काम है, प्लीज मुझे इन फिजूल के कामों से दूर ही रखो। रेहान अपना गुस्सा जब्त किए अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये लो, ये जनाब तो खेलने से पहले ही डर गई। इन्हें भी पता है ये सद्दाम भाई से नहीं जीत सकते। शानजे हंसते हुए रेहान के गुस्से को हवा दे गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सद्दाम भाई से मैं डरता हूँ? रेहान नाश्ता छोड़े शानजे की आंखों में देखने लगा। मुझे लगता क्या है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। सद्दाम भाई से अच्छा कोई क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। शानजी, अब ज्यादा हो रहा है। तुम अभी मेरे रेहान भाई को जानती नहीं हो। अगर ये मैदान में उतर आए तो सबकी छुट्टी हो जाएगी।
اگر ایسی بات ہے تو لگی شرط، اگر ہم لوگ جیت گئے تو تم لوگ وہی کرو گے جو میں کہوں گی، اگر تم لوگ جیت گئے تو ایسا ہوگا تو نہیں، لیکن پھر بھی بائی چانس اگر تم لوگ جیت بھی گئے تو پھر جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے، مجھے شرط منظور ہے۔ ریحان شاہزادے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا بولا، اگر تم شرط ہار گئی تو جو میں بولوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ شاہزادے ایک منٹ میری بات سنو۔ اس سے پہلے شاہزادے کچھ بولتی، صدام اسے ٹوکتے ہوئے بولا، نہیں صدام بھائی، اب سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ مجھے منظور ہے، شاہزادے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے بولی۔ صدام اس کی تیزی دیکھے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ واہ کیا بات ہے، میں پھر میچ کی تیاری کرتا ہوں۔ سلیم ریحان کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہزادے یہ تم نے کیا کر دیا، اگر تم ہار گئی؟ عروہ پریشانی سے بولی، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جہاں تک مجھے پتا ہے ریحان کو کرکٹ سے نفرت ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو سلیم ریحان بھائی کے بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ تو کیا جھوٹ ہے؟ ہاں بالکل، تم فکر نہ کرو، ہم ہی جیتیں گے۔ شاہزادے نے اپنی والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ریحان کو دیکھ کر مضبوط لہجے میں بولی۔ کیا صدام بھائی، آپ نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاہزادے شوق سے ایک دم اچری، تم نے بتانے کا موقع ہی کب دیا؟ میری بات سنے بغیر ہی شرط منظور کر لی؟ میں نے تم سے بولا تھا شاہزادے، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر وہ جیت گئے تو اپنی عزت کا کھچڑا ہو جائے گا۔ عروہ پریشانی سے دانت چباتے ہوئے وہاں ٹہلنے لگی۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ چیمپئن، لیکن اس نے کھیلنا چھوڑ دیا تھا، اور صدام بھائی تو اب بھی کھیلتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے وہ ہمیں ہارنے نہیں دیں گے۔ صدام بھائی آپ جیتیں گے نا؟ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کوشش پوری کروں گا۔ ریحان کو ہم کمزور نہیں سمجھ سکتے۔ صدام بھائی کچھ بھی کرے لیکن یہ میچ آپ کو ہی جیتنا ہوگا۔ شاہزادے کا دل اندر سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، باہر سے جتنی مرضی مضبوط بن رہی ہو لیکن اندر سے اتنی ہی ڈر رہی تھی۔ کیا ہوا، کہیں کھیلنے کا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ سلیم تینوں کو کمرے میں خسر خسر کرتا دیکھ شرارت سے بولا۔ نہیں، ہمارا ارادہ کیوں بدلے گا؟ شاہزادے مسکرائے بولی، تو پھر ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر لاؤنج میں سب انتظار کرے۔ ہاں چلو ہم چلتے، تم لوگ بھی جلدی سے آ جاؤ۔ صدام سلیم کو لیے باہر کی جانب چلا گیا۔ اس کی اگلی قسط جلد ہی آپ سب کی پیش خدمت میں لے کے حاضر ہوگی، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں جلدی ہی سیکنڈ اور آخری قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔